Hello students, today we will discuss alkynes. So what are the alkynes? These are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated means they contain the double bonds. Unsaturated compounds means they may contain double bond or triple bonds. So alkynes are unsaturated compounds or hydrocarbons, and these are highly reactive, and at least one carbon-carbon triple bond is present between the two carbon atoms. This is a triple bond here you can see, and the carbon-carbon triple bond is the functional group of the family alkynes. जैसे alcohols होते हैं उसमें functional group जो है hydroxyl group होता है, and aldehydes में जो है CHO group होता है. Similarly in alkynes the functional group is triple bond. So general formula is CnH2n minus 2, and the first stable member of alkyne family is acetylene or ethine, and acetylene is used for the welding purposes in the form of oxyacetylene flame, and the flame is obtained by mixing of acetylene and oxygen gas. And alkynes are starting materials of a large number of organic compounds. So alkynes जो हैं वो काफ़ी important हैं, और उससे हम जो है काफ़ी ज़्यादा large number of compounds जो है we can prepare. So if you see the structure of the alkynes, so here you can see it contains one carbon-carbon triple bond. So it has two carbons. This is sp hybridized carbon, and this is also sp hybridized carbon. So one of the sp hybridized carbon, it head-on overlap with the other sp hybridized carbon. So this forms the sigma bond. This is the sigma bond, and the remaining sp hybridized orbital of this carbon, this overlaps with the 1s orbital of the hydrogen, and similarly here this is also the sigma bond. So it has one sigma bond, and these are two pi bonds, and they are formed by the unhybridized p orbitals, px and py orbitals से जो है वो pi orbitals जो हैं वो form होते हैं. This is the sideways overlapping. So this is the px of this carbon, this is the px, and this is the py, 2py and 2px. These are in the plane of paper, and this is the above the plane of the paper. So this is above the plane of paper, and this is the below of the plane of the paper. So this is the sideways overlapping. Here you can see, and one is this py and px, and they form the two pi bonds. So there is one sigma bond and two pi bonds. So pi bonds are from the sideways overlapping. And if you see the complete structure of this, so you can see here, this is the pi bond. So this is the complete structure. This is the sigma bond. This is the sigma bond, and these are the pi bonds, two pi bonds and one sigma bond. So this is because these pi electrons, they are loosely held, so therefore alkynes are the highly reactive. So here you can see, if you see here, this is another picture of acetylene molecule. These are the two p orbitals on one carbon, and they form duff nut shaped. This is like shape. Here you can see can overlap two p orbital of other carbon, and here you can see the carbon-carbon triple bond, the pi cloud form a cylindrical sheath. ये जो pi cloud है, ये आपका पूरा जो है एक cylindrical sheath की तरह से ये बन जाता है. This is one carbon, इसके पीछे जो है वो दूसरा carbon होगा. So this is the complete picture of the acetylene molecule and pi cloud. Now, if you see the bond length, in the single bond, this is the bond length. For example, alkene में अगर आप देखेंगे carbon-carbon, so this is 154 pm, and this is in double bond, it is 133 pm. There is
1 sigma and 1 pi bond, and here 2 pi bonds. In the triple bond, it is 120 picometer. And this has the highest strength in comparison to the alkenes or alkanes. Bond enthalpy is 348 kilojoule per mole. This is 681 kilojoule per mole, and this is 823 kilojoule per mole. So this bond has high strength in comparison to the alkenes and alkanes, double bond and single bond. And strength of the bond, you can say here, this is the order of the, this has a highly strength, triple bond, then single bond, and this is the least strength, carbon-carbon single bond. So ethyne molecule is linear due to the symmetrical electron cloud between two carbon atoms. So ये जो है आपका सिमिट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये आपका क्या है, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल. This is linear molecule, and this angle is 180 degree here, and this is the 120, this is the bond length, and this is the carbon hydrogen bond length. So अब आपने जो है एल्काइन का स्ट्रक्चर एक अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, हाउ वी कैन प्रिपेयर द एल्काइंस. सो बिफोर वी गो टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट आर द टर्मिनल एंड इंटरनल एल्काइंस. सो टर्मिनल एल्काइन एंड इंटरनल एल्काइंस, only one alkyl group can be bonded to each of the two carbon atom. केवल one alkyl group bond हो सकता है. यहाँ पर ये कार्बन पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, दिस कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड, सो ओनली वन alkyl group can be bonded, either it will be here or here. अगर यहाँ पर ये है, if one alkyl group is bonded to one sp hybridized carbon atom of the triple bond, the compound is a monosubstituted alkyne. This is monosubstituted alkyne because one alkyl group is here, and it is a terminal alkyne because the triple bond is on the end of the carbon chain. Clear? So this is the terminal alkyne. क्योंकि जो alkyl group है, only one alkyl group is on the end of the carbon chain and it is bonded to the carbon-carbon triple bond. Similarly, the internal alkyne, अगर दोनों alkyl group substitute हो जाते हैं और ये सेंटर में आ जाता है, और यहाँ पर जो है R जो है this में भी CH2 CH2 CH3 and this is also CH2 CH2 CH3, तो ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है अगर सेंटर में है, बिल्कुल किनारे में नहीं है, तो this is the internal alkyl. When alkyl groups are bonded to each carbon atom of the triple bond, the compound is disubstituted or it is an internal alkyne. So terminal alkyne और internal alkyne आपको समझ में आया होगा. Now the preparation of alkyne. Alkyne preparation involves two processes. इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं. या तो हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जनरेट करें. सपोज हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं या एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करें किसी मॉलिक्यूल में, और इंक्रीज द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट ऑलरेडी कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड. तो ये हम दोनों प्रोसेस जो है देखते हैं अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एसिटाइलिन. व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एसिटाइलिन? सो एसिटाइलिन इज प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन. एट 1500 डिग्री सेल्सियस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है मीथेन का. सो वी गेट द दिस एसिटाइलिन. नाउ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के जो है दोनों पास में ही उसमें हेलोजन ग्रुप है अगर हैं. सो फर्स्ट डाइहैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोरेस्पॉन्डिंग एल्कीन. तो एल्कीन से हम क्या करेंगे, पहले हम डाइहैलाइड्स बनाएंगे बाय एडिशन ऑफ हेलोजन्स. तो हमारा ये पुराना लेक्चर जो है आपका 22, आप उसको देख सकते हैं हम कैसे बनाते हैं उसको. एंड आफ्टर दैट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज कैरिड आउट टू ऑब्टेन एल्काइंस. सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज जनरली कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स. इसके 2 स्टेप हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं? सो फर्स्ट इज दिस, सपोज दिस इज ए विसिनल डाइहैलाइड, यू कैन से हियर, यहाँ पर भी आपका एक हेलोजन है, दोनों कार्बन के पास पास में 2 हेलोजन है, तो दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स. अगर हम एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे इसमें, तो वी गेट द विनाइलिक हैलाइड. एंड दिस इज विनाइलिक ग्रुप. दिस इज, सो विनाइलिक हैलाइड इज वेरी अनरिएक्टिव. तो अगेन दिस इज ट्रीटेड विद द सोडियम एमाइड, तो वी गेट द एल्काइन. एंड अंडर माइल्ड कंडीशन,
अगर हम माइल्ड कंडीशन लेते हैं इस प्रोसेस में, दिस इज द सेकंड प्रोसेस, so dehydrohalogenation stops at the vinylic halide stage. Therefore, stronger base is required for alkyne formation. So this is a stronger base. अगर हम यहाँ पे एक वीक बेस ले लेते हैं तो ये एल्काइन में कन्वर्जन इसका नहीं होगा. तो वी हैव टू टेक द स्ट्रॉन्ग बेस, that is sodium amide. So if we see the example here, for example, this is 1,2-dibromomethane. This is 1,2-dibromomethane, CH2Br, and this is CH2Br. So alcoholic KOH से अगर हम ट्रीट करेंगे तो इसमें क्या हुआ, KBr निकल जाएगा और माइनस H2O निकल जाएगा. तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस कंपाउंड एल्किनाइल और विनाइल ब्रोमाइड. वी गेट द विनाइल ब्रोमाइड, दिस इज अनरिएक्टिव, एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम एमाइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, and this is prepared by the metal halides in the liquid ammonia. So this is the sodamide, this is a strong base. So यहाँ पर क्या होगा, NaBr आपका निकल जाएगा and ammonia molecule जो है वो वहाँ से निकल जाएगा. We get the this NH2 and 1H of this, so we get the ethine. So this is the dehydrohalogenation of vicinal dihalides. So if we see the example, another example, for example, this is 1-propene. This is an alkene. So 1-propene say if we treat with bromine, we get the 1,2-dibromopropane. This is the vicinal dihalide. Then we treat with the potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide. Alcoholic potassium hydroxide means if we dissolve the potassium hydroxide in alcohol, that is the alcoholic potassium hydroxide. सो माइनस KBr इसमें से रिमूव हो जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से. देन वी गेट द 1-bromo-1-propene. दिस वी गेट द 1-bromo-1-propene. अगेन विद द स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वी गेट द प्रोपाइन. सो फ्रॉम 1-propene वी गेट द प्रोपाइन. So now the third procedure, preparation of alkynes, is the reaction of metal acid halides. This is also important with primary alkyl halides. अगर आप इनको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो यहीं पर उसके आंसर्स भी हैं, इसलिए आप उसको ध्यान से सुने. सो नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल एसिड हाइलाइड्स विद प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड. सो मेटल एसिड हाइलाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड दे आर हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग लिटिल एल्काइन. सो ऑलरेडी भी है एक हमारे पास स्मॉलर एल्काइन है, हमें उससे लार्ज एल्काइन बनाना है. सो लिथियम और सोडियम एल्काइल एसिड हाइलाइड्स कैन रिएक्ट विद प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड. तो यहां पर क्या है, ये केवल जो लिथियम और सोडियम एल्काइल एसिड हाइलाइड्स हैं, दे कैन रिएक्ट ओनली विद द प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड एंड द एल्काइल ग्रुप बिकम्स अटैच्ड टू द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एंड ए न्यू लार्जर एल्काइन हैज बीन जनरेटेड. कैसे होता है? For example, this is the general reaction. This is lithium acid halide, and we treat the primary with the primary alkyl halide. Then we get the RC triple bond C and R. So ये आपका जो है यहाँ से क्या हुआ, इसकी जो चेन है वो we have already an alkyne, and यहाँ पर एक हमें बड़ा मॉलिक्यूल उसका मिल जाता है एंड लिथियम हैलाइड जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट वो निकल जाता है. तो रिएक्शन gives good yields only with the primary alkyl halide due to the strong basic nature of acid halide ion. क्योंकि acid halide ion का strong basic nature है, so वहां पर हमें केवल primary alkyl halide से जो ये reaction होगी. For example, if we see here, this is treated with lithium amide, means lithium or sodium in the ammonia solution, liquid ammonia solution. So we get the lithium amide. Then when we treat it, we get the lithium acid halide. And this on treatment, this is the metal acid halides. This on treatment with the primary, R must be primary. Primary halide, we get this compound. A higher alkyne. We get from a little alkyne, we get a higher alkyne. For example, this is the lithium acid halide. CH ट्रिपल बॉन्ड C. अगर हम एल्काइन को ट्रीट करेंगे बाय दिस प्रोसेस, सो वी गेट द लिथियम एसिड हाइलाइड एंड N ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर हम लेते हैं, दिस इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड.
सो यहां पर क्या होगा, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें जो है ये 1 हेक्साइन एन ब्यूटाइल एसिटाइलिन वी गेट. सो फ्रॉम ए लिटिल एल्काइन वी कैन गेट ए हायर एल्काइन. तो यहां पर हमने क्या हुआ, चेन को इंक्रीज किया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. नाउ if we take another example, lithium n-pentyl acetylide. Lithium n-pentyl acetylide. So again, if we treat it with the n-pentyl chloride, this is also a primary halide. So we get the 6-dodecyne. So this is a from little alkyne to a higher alkyne. And this is a internal alkyne. दिस इज इंटरनल एल्काइन. अगर आप यहां पर देखें, अगर यहां पर CH होगा तो दिस इज ए टर्मिनल एल्काइन. सो दिस इज एन इंटरनल एल्काइन, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड इज इन द सेंटर. नाउ द फोर्थ प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन इज फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड. लाइमस्टोन आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जो खदानों से जो चूना आता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. अगर हम उसको फर्नेस में हीट करेंगे तो वी गेट द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम कार्बन से ट्रीट करेंगे एट 2000 डिग्री सेल्सियस, देन वी गेट द कैल्शियम कार्बाइड. सो फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड इफ वी ट्रीट विद द कार्बन वी गेट द कैल्शियम कार्बाइड. एंड कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन we get the calcium hydroxide plus acetylene. We get the acetylene. So this is the fourth procedure. Now preparation हम लोगों ने देख चुका है कि कैसे कैसे उसको जो है हम एल्काइन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. We have seen 4 procedures. Now the physical properties. Physical properties में what is the nature, solubility and density. इसमें भी जो 1-2 पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. And melting point and boiling point. So physical properties, alkynes have similar properties as alkanes and alkenes. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग देखेंगे उसमें. So first 3 members are gases. अगर हम एसिटाइलिन से स्टार्ट करेंगे, इथाइन से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट 3 members are gases and they are insoluble in water. वाटर में insoluble है, but quite soluble in the usual organic solvents. For example, Ligroin. Ligroin is the petroleum distillates. And ether, solvent ether, and benzene, C6H6, and carbon tetrachloride, CCl4. So these are insoluble in water, but quite soluble in organic solvents. So they are less dense than water. वाटर्स की जो डेंसिटी है 1 है, और जितने भी आपके एल्काइंस हैं उनकी जो डेंसिटी है वो 1 से कम है, लेस डेंस देन वाटर. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम उसको कार्बन नंबर इंक्रीज होता है, जैसे हमने एल्केन में भी देखा है, एल्कीन में भी देखा है, बट जनरली हायर देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन और एल्कीन. लेकिन वहां पर जो है इंक्रीज कम होता था, लेकिन यहां पर जो इंक्रीज है वो ज्यादा इंक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू एल्केन और एल्कीन्स में. एल्काइन में जो है वो इंक्रीज जैसे से कार्बन नंबर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है. एंड ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग हो जाती है इन एल्काइन, अफेक्ट द सेम एज दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स विद द सेम कार्बन स्कर्टन इन एल्केन एंड एल्कीन. जैसे एल्केन एल्कीन में क्या होता था कि अगर ब्रांचिंग हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उसका जो है वो कम हो जाता था ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड वेंडर वाल फोर्सेस. वो आप उसको लेक्चर को आप देख सकते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर में समझ में आएगा. नाउ इफ यू सी हियर acetylene, propyne, this is 1 butene, this is 1 pentine, this is 1 hexyne, and this is 1 heptine. These all are the terminal alkynes. If you see the boiling point here, this is increasing. -75, -23, 9, 40, 72 and 100. तो यहाँ पर ये इंक्रीज होता जा रहा है. सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी जो है इंक्रीज होता जा रहा है. एंड दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी. डेंसिटी जो है दिस इज आल्सो लेस देन 1. लेकिन अगर आप यहां पर देखें एल्काइंस में दिस इज 1 ब्यूटाइन, दिस इज 1 ब्यूटाइन एंड दिस इज द 2 ब्यूटाइन.
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। यहाँ पर क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 9 है और इसका 27 है। केवल 2 ब्यूटाइन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर जो है 1 ब्यूटाइन है, इसका जो है ओनली इट इज़ 9। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ब्यूटाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है, या 2 ब्यूटाइन का कम है, या दोनों के सेम है। सो 1 ब्यूटाइन जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। क्यों कम है? बिकॉज इट इज़ ए टर्मिनल एल्काइन, और ये इंटरनल एल्काइन है। दिस इज ओनली द रीजन। 1 ब्यूटाइन इज ए टर्मिनल एल्काइन एंड 2 ब्यूटाइन इज ए इंटरनल एल्काइन विद मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर आप यहां पर देखें, दिस इज द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कंपेयर टू द 1 ब्यूटाइन। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट इन 2 ब्यूटाइन देन 1 ब्यूटाइन। तो यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं, वो यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वहां पर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें, दिस इज 1 पेंटाइन एंड दिस इज द 2 पेंटाइन। तो इन कंपेरिजन टू दिस अगर हम यहां पर देखें, दिस इज समवॉट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द इंटरनल एल्काइन, दिस इज ए टर्मिनल एल्काइन। तो यहां पर थोड़ा जो है ये सिमेट्रिकल है, तो यहां पर इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होता जहां पर कि जो हमने पहले वाले उसमें देखा। सिमिलरली अगर आप देखें 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, दिस इज आल्सो C5H8, ऑल आर C5H8, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, यहां से इससे भी कम हो जाता है, इससे यहां भी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि दिस इज ए, यहां पर जो है ये ब्रांच आ जाती है एक इसमें। तो ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है कि जो वैन डर वाल फोर्सेज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वो कम हो जाते हैं। तो कम होने की वजह से ड्यू टू ब्रांचिंग इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी उसमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।